I hope you all are doing good. This is Tahreem Gurdezi here, and I will be doing the discussion for the diagnostic test here for all of you. So let's start with the first question. The first question is the branch of science dealing with fossil record is called. So अगर हम बात करें कि the branch of science that deals with the study of fossil records, so that is basically paleontology. ठीक है? So the correct answer for this is delta. Next is the branch of science dealing with the classification of life forms. So when we talk about classification of life forms, तो वो आपके पास आ जाता है taxonomy. ठीक है, इसमें हम like in different classes we do divide the organisms based on their similarities or based on their genetic makeup. ठीक है. Next we have this branch of biology which deals with parasites. So अगर हम parasites की बात करें, so we all know that parasites are organisms that actually harm their hosts. They take the food and shelter from their host and they in return harm their hosts. So that is basically parasitology. Charlie, आपके पास इसका correct answer है. The member of one species inhabiting the same area are called. तो अगर आपके पास similar species के members they live in the same geographical location, that is basically population. Alpha आपके पास इसका correct answer है. Which of these is an example of organ level in plant? अब देखो question में focus करना होता है. When you look at the options, there are two options that do signify कि आपके पास they are the example of organ level. ठीक है. First we have stomach and the second one we have stem. But the thing is यहाँ पे उसने लिख दिया example of organ level in plants. So stomach is an organ level. It is an organ, but it is not present in plants. It is an organ of animal. ठीक है. So आपके पास stem is going to be the correct answer. Xylem tissue mention हुआ हुआ tissue है and mesenchyme is not an organ. A large regional community primarily determined by climate is. So हम बात करें कि regional community that is determined by climate, तो the correct answer for this is biome. ठीक है, आपके पास Charlie इसका correct answer है. These are basically fact-based questions. So in case of any query related to these, you guys can write in the chat box. ठीक है, I am looking at the chat box and I will be answering your queries साथ साथ ही. ठीक है. Next is the number and variety of species in a place is called. So when we talk about the number and variety, एक species का number and variety that is present in a specific place that is known as biodiversity. Okay, diversity refers to it basically refers to a diverse class or group of organisms that are present within a geographical location. So इसका correct answer आपके पास क्या है? That is biodiversity, a large regional community primarily determined by climate, या part of earth inhabited by living organisms. ठीक है, ये different definitions दी हुई है biome की, biosphere की, lineage which shows the phyletic link, आपके पास phyletic lineage होती है वो, ठीक है. But यहाँ पे the question is actually about number and variety of species that live in a place, that is basically biodiversity. Which of the following is an example of tissue level in plant? तो plant के अंदर tissue level की हम बात करते हैं तो muscles plants के अंदर नहीं होते, animals के अंदर होते हैं. Glandular tissues भी animals में नहीं होंगे. Animals are going to have phloem tissues. Can anyone write in the chat box कि phloem is responsible for, when we talk about the function of phloem, so what is the basic function of phloem? Anyone? You guys can write in the chat box. I'm going to wait for a while to get the answer and then I'll move to the next question then. When we talk about phloem, any idea? Talking about the phloem tissue, when we talk specifically about the function that is associated with phloem, that particular function is, it's basically related to transport. Let me give you a hint here. It's associated with transport. When you talk about phloem, it's basically associated with the transport of food. ठीक है, आपके पास you have xylem and phloem, and xylem is responsible for the transport of water, and phloem is responsible for the transport of food in plants. ठीक है. Next is a city named Lahore is an example of which level of organization. So it's basically a city, and जब हम level of organization की बात करते हैं तो it's not species. Species like आपके पास a group of organisms that can actually interbreed and produce fertile offsprings. That's the species. Ecosystem आपके पास generally आप पूरे biosphere को मतलब ecosystem आप इस तरह कह रहे हो
When you talk about ecosystem, we say कि आपके पास different organisms are basically linked together. ठीक है, we have community and we have population. So the correct answer for this is going to be an ecosystem. क्योंकि जब हम ecosystem की बात करते हैं, यहाँ पे plants हैं, animals हैं और सारे organisms, weather भी आ जाते हैं, landscape भी आ जाते हैं, these all work together to form a bubble of life. ठीक है, so when we talk about city, तो सिटी में there are humans, there are animals, there are plants. आपके पास बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स एनवायरनमेंट के दोनों प्रेजेंट हैं. ठीक है, when you talk about biotics, so we are talking about basically the living factors of an environment, and when we talk about abiotic factors, we are actually talking about the environment. ठीक है, like आपके पास जो weather है, climate है, these are basically the abiotic factors of an environment. So ecosystem में आपके पास biotic और abiotic दोनों components आ जाते हैं. When we talk about a city, there are different factors that basically are influencing that. या अगर हम बात करें तो organisms living there, so आपके पास we have biotic and abiotic both factors that were influencing. So the correct answer is going to be ecosystem. In the northern hemisphere, tundra type of growth that basically is in the form of wild land. ठीक है, so जब हम इसकी बात करते हैं हम कहते हैं कि tundra a major zone of treeless level of rolling ground that is found in cold region. ठीक है, so आपके पास it's the correct answer, it is in the form of wild life. Next is, which of the following is an example of contagious disease transmitted by blood contact? So contagious disease है that is transmitted by blood contact. So इसमें आपके पास correct answer क्या आएगा? That is going to be hepatitis. ठीक है, जब हम hepatitis की बात करते हैं, that is basically मुझे ये बताओ कि hepatitis is it because of a virus or because of bacteria? When we talk about hepatitis, is it because of a virus or bacteria? ठीक है, एनीमिया इज लाइक इट्स लाइक द आयरन लेवल कम हो जाता है. ठीक है, या फिर आपके पास हीमोग्लोबिन इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. आपके पास रेड ब्लड सेल्स का जब नंबर डिक्रीज करेगा, सो विल द हीमोग्लोबिन. ठीक है, पोलियो नहीं, पोलियो इज नॉट बेसिकली ट्रांसमिटेड बाय ब्लड कॉन्टैक्ट, इट इज इट्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज बेसिकली ओरोफेशियल रूट. ठीक है, एंड वूपिंग कफ भी नहीं हो सकता. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज हेपेटाइटिस. व्हाई कैंट beat community for the MCQ 9? Let me go back to the MCQ 9. जब हम देखो, we are talking about Lahore, right? अगर हम community की बात करते हैं तो community is a social group of any size whose number reside inside specific locality, share government and often have a common culture and social heritage and historical heritage, and locally inhabited such a group. देखो, हम community में जब हम ecosystem की बात कर रहे हैं तो we are talking about the biotic as well as abiotic factors. ठीक है, सो आपके पास यहाँ पे देखो, जब हम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, सो इसमें हमने सिर्फ क्या बात की, हमने कहा कि वी हैव specific locality, they share the government and they have the common cultural and historical heritage. ठीक है, सो आपके पास ecosystem is the most appropriate one for this. ठीक है, हम इसमें abiotic और biotic दोनों components of the environment को describe कर रहे हैं. जब हम community की बात करते हैं, we are basically talking about all the populations of different species that are living and interacting in a specific area. और जब हम ecosystem की बात करते हैं, so we are basically talking about community plus the non-living environment. यानी आपके पास air है, water है, soil है, climate है, ये सारी चीजें भी आ जाती हैं. ठीक है, so आप ये कह सकते हो कि इसके अंदर abiotic components भी आ रहे हैं. That is the reason why we are considering it a ecosystem. ठीक है, I hope this all makes sense and you're clear. Next is production of genetically identical copies of organisms by asexual reproduction. So आपके पास genetically identical copies बना रहे हो और asexual reproduction के through बना रहे हो, that is basically cloning. ठीक है, microcopy in a typical compound microscope, the resolving power is which is about that of a naked eye respectively. So जब हम resolution power की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि typical compound microscope और human eye की हम resolution power की comparison कर रहे हैं. So that is basically 2 micrometer and 500x. ठीक है, so resolution is basically human eye की it's 1 millimeter और compound microscope की 2 micrometer है. ठीक है, and 500 times
It is 500 times the human eye. So आप comparison कर रहे हो, so resolution of compound microscope is 2 micrometer, and अगर आप उसे compare करते हो with the naked eye, so that is basically 500 times. The resolution of a compound microscope is 500 times more than that of a human eye. What is the microscope's ability to distinguish between separate objects that are close together? So that is basically resolving power. Resolving power होती यही है कि when two objects are close together, आप कितना उन दोनों के दरमियान difference होगा, so you're able to identify them as two different objects, not a single one. That is the resolution power. ठीक है? Next is in cell fractionation, various components of cell, including its organelles, can be isolated in different layers depending on. So basically आपके पास कौन सा फैक्टर क्या चीज इस पे डिपेंड कर रही होती है, their physical properties, जिस तरह उनका वेट क्या है, उनका साइज क्या है, ठीक है, एंड ऑल्सो द मीडियम, द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, लाइक उनकी डेंसिटी क्या है, ठीक है. सो इन फैक्टर्स की बेस पे हम सेल फ्रैक्शनेशन करते हैं. इन फैक्टर्स की बेस पे हम डिफरेंट ऑर्गेनल्स को आइसोलेट करते हैं फ्रॉम अ सेल. सो द करेक्ट आंसर इज बोथ अल्फा एंड बीटा. Next is the human naked eye can differentiate between 2 points that are how much apart. तो अभी हमने इस चीज को देखा. You can differentiate between 2 points which are 0.1 millimeter apart. Resolving power of human eye is stated to have different values in Federal and Punjab. It's like the values different books में contradict कर रही हैं. ठीक है. So in Federal it's like 0.1 millimeter and it's Punjab it's like 1 millimeter. ठीक है. So for different books there are different values. That is why आपके पास it depends based on like the question. ठीक है. The compound microscope was first used by. जब हम compound microscope की बात करते हैं, it was first used by A.V. Leeuwenhoek. The isolation of different cellular components to determine its chemical properties can be achieved by. आप different cellular components को isolate कर रहे हो, अलग कर रहे हो, that is basically cell fractionation. ठीक है. Next is which is the correct sequence of steps in cell fractionation. So जब हम sequence की बात करते हैं, you have homogenization and then comes centrifugation. ठीक है. So alpha इसमें आपके पास इसका correct answer. You have homogenization and centrifugation. While working in a laboratory before studying a sample under a microscope, it was immersed in a dye solution to obtain the contrast. ठीक है. So basically, staining is used to enhance the contrast in the microscopic samples, making it easier to distinguish between different structures and components that are present within the cell. The ability to distinguish between two separate point objects, so that is basically the resolution. ठीक है. Which of the following is the resolution of a compound microscope? So when we talk about the resolution, the resolving power, a compound microscope की कितनी होती है? That is 0.25 micrometers. ठीक है. So the resolving power of a microscope is defined as the reciprocal of the distance between two objects, which can be resolved when seen through the microscope. So उसके आपके पास 0.2 micrometer resolution आ जाती है. Cell recognition and adhesion occurs due to biochemicals of cell membrane named. जब हम cell recognition की बात करते हैं और adhesion की बात करते हैं, तो आपके पास क्या इसमें involve होते हैं? You have glycolipids and glycoproteins. These are cell surface markers. ठीक है. इनका काम ये होता है कि आपके पास they are involved in cell-to-cell recognition and sticking the correct cells together to form the tissues. Next is the binding of the specific proteins on regulatory DNA sequence can be studied by means of. अब आपके पास जो बाइंडिंग हो रही है स्पेसिफिक प्रोटीन्स की ऑन रेगुलेटरी डीएनए सीक्वेंस, उसको आप किस तरह स्टडी करते हो? यू कैन स्टडी बाय मींस ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी. ठीक है. सो आपके पास इट इज अ टेक्निक व्हिच इज यूज्ड टू स्टडी द बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन्स ऑन रेगुलेटरी डीएनए सीक्वेंसेस. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर इज दैट. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज हाई रेजोल्यूशन पावर. दिस इज ड्यू टू. तो जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, इसकी रेजोल्यूशन पावर ज्यादा है. The reason is आपके पास it has very low wavelength of electron beam. ठीक है. So इसकी जो इलेक्ट्रॉन बीम की wavelength होती है वो बहुत कम है. ठीक है. इससे आप स्मॉल चीजों को भी मैग्नीफाई करके देख सकते हो. And energy is focused through electromagnetic lens. It can magnify very small details with very high resolving power. ठीक है. इसकी wavelength जो इलेक्ट्रॉन बीम आप यूज कर रहे हो वो shorter wavelength है. इस वजह से इसकी resolution power is greater. Resolution power is the ability to distinguish between two close objects. ठीक है. चीज मैंने बताई. Organelles can be separated from cell homogenate through. तो आपने organelles को separate करना है, तो आप किस तरीके से करोगे? आप इसको करोगे थ्रू डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन. आप जब हम बात करते हैं अबाउट द डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, इट इज यूज्ड टू सेपरेट द ऑर्गेनेल्स फ्रॉम द
सेल होमोजेनेट, पहले होमोजेनाइजेशन होती है फिर सेंट्रीफ्यूगेशन होती है, राइट। इट टेक्स एडवांटेज ऑफ डिफरेंसेस इन द साइज, शेप्स एंड डेंसिटी ऑफ द सेलुलर कंपोनेंट्स। वो चीज हमने पहले भी डिस्कस की थी कि दिस इज हाउ, लाइक दिस इज द क्राइटेरिया जिसके बेस पे आप डिफरेंशिएट करते हो ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। द सेल होमोजेनेट इज सब्जेक्टेड टू सीरीज ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन स्टेप्स एट डिफरेंट स्पीड्स। सेंट्रीफ्यूगेशन में बेसिकली आप हाई स्पीड पे इसको मूव कर रहे हो एंड बेस्ड ऑन द साइजेस या बेस्ड ऑन द डेंसिटी आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स अलग हो जाते हैं। Next is, which of the following type of microscope is used to study the internal structures of cell? तो अगर आपने internal structures को study करना है आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करोगे, इसकी रेजोल्यूशन पावर ज्यादा होती है, मैग्निफिकेशन भी ज्यादा है। What would be the resolving power of the objective lens in the microscope if the eyepiece is 10x and the total magnification is 40x? ठीक है, so eyepiece into objective lens करोगे तो total magnification आती है। सो जब आपको टोटल मैग्निफिकेशन दे दी है उसको आप डिवाइड करोगे बाय द आई पीस, जिससे आपके पास आ जाएगी ऑब्जेक्टिव लेंस की रेजोल्यूशन, ठीक है। सो आपके पास द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी 400। इसको आपने देखो, क्वेश्चन इज रिजॉल्विंग पावर, what is the question? Resolving of the microscope is calculated by multiplying the power of the objective lens and the eyepiece, ठीक है। So resolving power, उसने आप what will be the resolving power of the objective lens in a microscope? अगर आपके पास आई पीस का उसने आपको दे दी, ठीक है, और नेक्स्ट उसने आपको क्या दे दिया कि जो टोटल मैग्निफिकेशन है वो भी उसने आपको प्रोवाइड कर दी। आपने फाइंड क्या करना है, रिजॉल्विंग पावर फाइंड करनी है ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव लेंस की रिजॉल्विंग पावर फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो आप टोटल मैग्निफिकेशन फाइंड करो, ठीक है। सो टोटल मैग्निफिकेशन 40x है, आई पीस की मैग्निफिकेशन 10x है, तो जो ऑब्जेक्टिव मैग्निफिकेशन है दैट इज 4x। ये हमने फर्स्ट स्टेप ये निकाल दिया। द नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी रिजॉल्विंग पावर है क्या, ठीक है। सो आपके पास रिजॉल्विंग पावर फाइंड करने के लिए रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंसेज में कहा है ना, सो आपको वो फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग द पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इन आई पीस। तो आई पीस ये है और टोटल मैग्निफिकेशन दी हुई है, तो टोटल मैग्निफिकेशन आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकालते हो, और जब आपने आई पीस की फाइंड करनी है तो आपने ऑब्जेक्टिव लेंस की फाइंड करनी है तो आपने क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। 4x इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। Next is the isolation of different cellular components is determined by their chemical composition. It can be achieved by. So आपने isolation करनी है different cellular components की, उनकी chemical composition determine करने के लिए, तो ये आप किस तरीके से करोगे? That is basically done by the cell fractionation. ठीक है, centrifugation में क्या होता है? Samples are spun at high speed. ठीक है, वही वाली चीज। Yes, 4x is correct for that. What would be the magnification of objective lens in microscope if eyepiece? Same question. 4 is the correct answer for this. ठीक है, a major breakthrough in the studies of cell came with the development of electron microscope. This is because electron microscope is more powerful than light microscope as it uses the beam of electron which has wavelength much longer. हमने अभी बात की थी wavelength की. The resolving power of electron microscope is much higher than that of light microscope. Resolving power is light beam can pass through the thick materials, whereas light microscopy requires thin sections. Resolving power resolution of electron microscope is much higher than that of the light microscope. यही बात है, यहाँ पे ये वाला क्यों नहीं है, because wavelength उसने कहा है that is much longer. अभी हमने कहा था हमने short wavelength, क्योंकि wavelength और energy का inverse relation होता है, सो शॉर्ट वेवलेंथ वाले हमने जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रॉन बीम थी वो यूज की थी, ठीक है। सो ये अल्फा इसका करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ इसने लिखा है कि लॉन्ग वेवलेंथ वाले यूज किए। बीटा आपके पास इसका करेक्ट आंसर है। अ स्टूडेंट विशेस टू स्टडी the cell structure under a light microscope having 10x eyepiece and 45x objective lens. He should illuminate the object by which one of the following colors of light so that to get the best possible resolution. ठीक है, so resolution is inversely proportional to wavelength of the light used. ठीक है, जब हम वेवलेंथ की बात करते हैं तो जब हम इस तरीके से जा रहे होते हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, तो हमारे पास एनर्जी इंक्रीज कर रही होती है। यहाँ सेंटर में यू हैव द विजिबल रीजन और उसमें आपके पास इस तरीके से होता है वेब गॉयर, ठीक है। सो आपके पास उसने क्या कहा है कि रेजोल्यूशन लाइट माइक्रोस्कोप की इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, यानी जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है यहाँ पे वेवलेंथ कम हो रही है, यानी इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी आपके पास
रेजोल्यूशन अच्छी है, ठीक है. So he should eliminate the object by which of the following color so that as to get the best possible resolution. Options आपके पास क्या है? ब्लू, ग्रीन, येलो. तो रिजॉल्विंग पावर, यहाँ पे हमने ये चीज डिस्कस की कि द रेजोल्यूशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड. शॉर्टर वेवलेंथ प्रोवाइड बेटर रेजोल्यूशन, ठीक है. सो ब्लू हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अमंग द गिवन ऑप्शंस, ठीक है. जिसकी वेवलेंथ आपके पास शॉर्ट होगी उसकी रेजोल्यूशन डेफिनेटली क्या होती है? ज्यादा होती है. सो जब हम वेवलेंथ की बात करते हैं कि वेवलेंथ किसकी शॉर्ट है, सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? व्हेन वी टॉक अबाउट द वेवलेंथ तो हमें ये चीज पता है कि ब्लू की वेवलेंथ शॉर्टर है, ठीक है. ब्लू की वेवलेंथ आपके पास होती है अप्रोक्सीमेटली 450 टू 495 नैनोमीटर, और रेड की होती है इट्स लाइक 600 एंड समथिंग, आई गेस इट्स लाइक बिटवीन 620 टू आई गेस 750 होता है. वो इस तरीके से वैल्यूज होती हैं. तो जब हम वेवलेंथ कंपैरिजन करते हैं तो वेवलेंथ आपके पास किसकी ज्यादा है? ब्लू की वेवलेंथ आपके पास ज्यादा आ रही है, जिसकी वजह से द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी ब्लू, ठीक है. Next is 15 millimeter size object is observed under light microscope using 5x eyepiece and 10x objective. Its magnified image will have the size. तो size आपके पास इसका क्या होगा? That is going to be 750 milliliter. यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया कि आपके पास if the object is 15 millimeter और उसको आप ऑब्जर्व करें अंडर लाइट माइक्रोस्कोप यूजिंग 5x eyepiece and 10x objective lens, मैग्निफाइड इमेज का साइज होगा 75 millimeter. So magnification of microscope है, that is the product of its magnification of the eyepiece and magnification of objective lens. ये बात हमने पहले भी डिस्कस की. So आप इनका भी प्रोडक्ट ले लो, आपके पास 50 आ रहा है, ठीक है. एंड देन फाइनली व्हाट आर यू सपोज टू डू कि आपने इस 50 और ऊपर वाले 15 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, क्योंकि द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय द मैग्निफिकेशन. तो आपके पास साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज 15 मिलीमीटर, मैग्निफिकेशन 50x है. जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? दैट इज 750 माइक्रोमीटर, ठीक है. सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इज सपोज टू बी डन. Next is the process by which various components of cell, including its organelles, can be isolated. So आपने isolate करना है, आप क्या use करते हो? Cell fractionation का process use करते हो. Human naked eye can differentiate between two points that are how much apart? 1 millimeter. Which would be the resolving power of objective lens of the microscope if the eyepiece is 10x and total magnification आपके पास 40x है, तो correct answer is 4. दोनों को divide कर देना है आपने. Image represented by the compound microscope. So जब हम compound microscope की बात करते हैं तो image is virtual and it's also inverted. रियल इमेज नहीं बनती, वर्चुअल इमेज बनती है. रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई, सो आपके पास जब हम ह्यूमन आई की बात करते हैं दैट इज 0.1 मिलीमीटर. द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज कंपेयर टू द आई, तो आपके पास जब आप कंपैरिजन करते हो तो आपके पास दैट इज 250,000 टाइम्स आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन मैग्निफिकेशन जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द नेकेड आई. If 15 micrometer size object is observed under the light microscope using 5x eyepiece and 10x objective lens, उसकी magnified image क्या होगी? 750. आपने सबसे पहले 5 और 10 को मल्टीप्लाई करना है और देन इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देना इमेज की मैग्निफिकेशन फाइंड करने के लिए. In a typical compound microscope, the resolution is 2 micrometer. Which is about. So जब हम compound microscope की बात करते हैं, it is about 500 times that of the naked eye. When a red stain is added to a culture containing both living and dead cells, only dead cells can take the stain. Which structure or structures prevent the stain entering the living cell? अब कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्रिवेंट कर रहा है कि वो स्टेन एंटर कर सके लिविंग सेल में, ठीक है. सो दैट इज अ सेल मेम्ब्रेन, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट सेल मेम्ब्रेन इट इज अ लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल, ठीक है. एंड इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट, ठीक है. सो द स्ट्रक्चर दैट कंट्रोल्स द मूवमेंट into and out of the cell, that is the cell membrane, which is also selectively permeable in nature. इसको आप differentially permeable भी कह सकते हैं, and it only allows selected objects to pass through it. Next is the activated enzyme made up of polypeptide chain and a cofactor. तो जब polypeptide chain भी होता है, cofactor भी होता है, तो उसको आप क्या कहते हो? That is basically known as holo enzyme. Whole से याद रख लो, WHOLE इंग्लिश वाला जो whole होता है, that means complete, ठीक है. उसको holo enzyme कहते हैं. Specific site at which substrate is attached on the enzyme is converted into product, that is basically the active site, ठीक है.
Which step causes activation of catalytic site of an enzyme? So activation आपने करनी है catalytic site की, ठीक है. Change in the pH of enzyme, formation of enzyme substrate complex. जब enzyme जाके substrate के साथ attach होता है, आपके पास enzyme substrate complex बनता है, उसके बाद आपके पास enzyme और product बन जाते हैं. enzyme उधर ही रहते हैं, substrate breakdown होकर product बन जाता है. Change in the shape of substrate, change in temperature. तो अगर आप pH या temperature के अंदर change करो depending on what change you're bringing, ठीक है. अगर तो आप optimum temperature और optimum pH पे थे and you're bringing a change, either you're decreasing or increasing the temperature or pH, that is going to affect the rate of enzyme the enzyme activity in like a negative way. ठीक है. So the correct answer is going to be the formation of enzyme substrate complex. Enzyme substrate specificity is a result of which property of enzyme? So आपके पास that is basically due to the tertiary structure of enzyme. आपके पास enzyme और जो substrate होते हैं they are basically specific, यानी एक जो substrate है वो एक specific enzyme के साथ आके attach हो सकता है based on its active site. The mechanism of enzyme activation is referred to as the enzyme specificity. The mechanism of enzyme activation. आपके पास enzyme activation के mechanism को क्या कहते हैं? Enzyme basically catalyze the chemical reaction that are taking place inside the cell by lowering the need of activation energy. So this is basically the process is catalysis. Enzyme catalyze करते हैं chemical reaction को that is taking place. ठीक है? So जिस mechanism के through ये हो रहा है that is basically catalysis. Activation energy lower होती है, ठीक है. एंजाइम स्पेसिफिसिटी ये चीज है कि एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट एक स्पेसिफिक एंजाइम के साथ अटैच हो जाता है, जिसमें आपके पास लॉक इन की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल आ जाता है. डीनेचरेशन, अगर तो आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं. सो सेम गोज विद द पीएच. ठीक है. नेक्स्ट इज सम एंजाइम रिक्वायर्ड स्पेसिफिक non-protein molecule to behave catalytically. The enzyme devoid of this molecule. Devoid का मतलब यानी वो चीज प्रेजेंट नहीं है उसके अंदर. ठीक है. उसको क्या कहते हैं? जब हम बात करें non-protein molecule की, so non-protein molecule we are basically talking about cofactor, क्योंकि enzyme खुद प्रोटीन नेचर का होता है और जो कोफैक्टर होते हैं वो ऑर्गेनिक हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, बट इट कैन नेवर बी अ प्रोटीन. ठीक है. सो आपके पास जब नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं है एंजाइम का, सो दैट इज बेसिकली नोन एज एपोएंजाइम. ठीक है. बीटा करेक्ट आंसर है. ऑल एंजाइम्स आर, जब हम एंजाइम्स की बात करते हैं दे आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, क्योंकि हम टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात करें. नेक्स्ट एन एंजाइम विदाउट इट्स कोफैक्टर दैट इज एपोएंजाइम. Enzymes work by lowering the activation energy of the reactions they catalyze. Catalytic type of RNA that is ribozyme. A ribozyme is an enzyme. Generally enzymes are protein in nature. This is the only enzyme जिसमें जो आपके पास RNA nature का होता है. ठीक है. Lock and key model was proposed by Emil Pfister. Induced fit model was proposed by Daniel Koshland. Next we have enzymes related to fatty acid oxidation. तो fatty acid oxidation के जो enzymes होते हैं वो आपके पास कहाँ प्रेजेंट होंगे? They are going to be present in mitochondria, क्योंकि fatty acid metabolism is also called beta oxidation. ये आपके पास mitochondria के अंदर हो रहा होता है. ठीक है. Next we have the main difference between catalysis and enzyme. Catalyst and enzyme. So catalyst आप industries में जो use करते हो that is catalyst. जो आप inside the living organism use करते हो that is the enzyme. So the difference is basically एक organic होता है, लाइक एक आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर यूज करते हो, एक आप नॉन लिविंग के लिए इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज कर रहे होते हो. ठीक है. दोनों का काम सेम ही है. बोथ लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, बोथ स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन. सो एंजाइम आर शार्प इन एक्शन नहीं, कैटलिस्ट आर यूज्ड इन लार्ज अमाउंट नहीं, दोनों स्मॉल अमाउंट में यूज होते हैं. कैटलिस्ट आर इनऑर्गेनिक व्हाइल एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर, दैट इज द रीजन. ठीक है. नीड पीएच 1 नहीं, डिफरेंट एंजाइम्स डू नीड डिफरेंट पीएच. पेप्सिन को 2 चाहिए होता है, ट्रिप्सिन को 8 चाहिए. ठीक है. तो इट डिपेंड्स बेस्ड ऑन एंजाइम है कहाँ का. The cofactor is non-protein, like a metallic ion it is referred to as. तो जब हम cofactor की बात करते हैं हमने कहा कि ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, होगा ये non-protein ही. ठीक है. अगर metallic ion है that means it's like inorganic. उसको आप क्या कहते हो? That is basically known as activator. ठीक है. प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक होता है एंड आपके पास जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक में 2 टाइप्स आ जाती हैं. यू हैव डिटैचेबल एंड नॉन डिटैचेबल. तो प्रोस्थेटिक ग्रुप इज लाइक नॉन डिटैचेबल, कोवलेंटली बॉन्डेड होता है. ठीक है. इसमें डिटैच नहीं हो सकता. और जो कोएंजाइम होता है वो भी ऑर्गेनिक होता है बट दैट इज डिटैचेबल. जब हम मेटालिक आयंस की बात करें तो मेटालिक आयंस दे आर नॉट ऑर्गेनिक. जिस तरह मैग्नीशियम आयंस है, कैल्शियम आयंस है, दे आर नॉट ऑर्गेनिक इन नेचर. ऑर्गेनिक में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए, लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह ऑर्गेनिक. ठीक है. Enzymes that have slightly different molecular structure but perform identical activity they are known as आपके पास they are known as isoenzymes. ठीक है. So they are the different forms of enzymes that have similarly identical functions but
उनका जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस होता है ना और जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है. कोफैक्टर टाइटली बाउंड टू द एंजाइम ऑन द परमानेंट बेसिस, दैट्स द प्रोस्थेटिक ग्रुप. मैंने अभी बताया कोवेलेंटली बॉन्ड होते हैं, परमानेंटली अटैच्ड है, दिस इज ऑर्गेनिक इन नेचर. The specific site at which substrate is attached in the enzyme and converted into product that is known as active site. The activated enzyme consisting of a polypeptide chain and a cofactor, यानी आपके पास cofactor भी है और enzyme का protein part भी है. Non protein और protein जब दोनों मिल जाते हैं आपके पास whole बन जाते हैं, holo enzyme. ठीक है. Catalysts that increase the rate of biochemical reactions are called their enzymes. Enzymes increase करते हैं rate of biochemical reactions. The metal cofactor which is used for the synthesis of glucose, that is magnesium ion. ठीक है. Magnesium use होता है, this is the activator. क्योंकि ये inorganic है and it is metallic in nature. It falls about enzymes. All enzymes require cofactor for proper functioning. No, not all enzymes require a cofactor. Only small amount of enzyme is required. Yeah, that is true. They work in vitro as well as in vivo conditions. They lower the activation energy. So yeah, which is false. So हमने alpha को पहले ही false कह दिया. बाकी सारे सही हैं. An enzyme without a cofactor, that is apoenzyme. Molecular ions are produced by passing a high-level energy electron beam or X-ray beam through. Molecular ions है तो आप gas मॉलिक्यूल से पास करोगे तो आपके पास ये बनेंगे. ठीक है. सो एक्सरे को जब पास करोगे थ्रू अ गैस सच एज एयर है या फिर गैस सैंपल है, कोई भी आप गैस ले लो, they can cause the ionization of atoms that are basically present within the gas molecule. इस ionization की वजह से एक्सरे जो होगा वो ट्रांसफर करेगा enough energy to the gas atoms, causing them to lose one or more electrons and form positively charged ions. इसकी वजह से आपके पास molecular ions बनते हैं, गैस molecule से ये बनते हैं. ठीक है. So the correct answer is Charlie. The bond formed when two or more atoms complete their electron shell by sharing the electrons. So electron sharing की वजह से आपके पास covalent bond बनता है. Ionic bond is basically because of give and take of electron. You either give the electron or you take the electron. जैसे NaCl है तो sodium is a metal, it's going to lose the electron. Chlorine is a non-metal, it's going to gain the electron. That is the ionic bond. Hydrogen bond की बात करें, that is basically because of that is bond between hydrogen because it's very electropositive in nature, and उसका आपके पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनता है because they are basically very electronegative in nature. ठीक है. So आपके पास dotted line से represent किया जाता है, that is basically hydrogen bond. Covalent mutual sharing से बनता है. ठीक है. Okay, till here we are done with the biology portion. If you guys have any questions or queries related to that, I will be answering those. I'm going to give you guys a minute or two so for you to tell me the questions. Otherwise, we will be moving forward to the next part. So when will be the top three announced? So the top three will be announced soon. You guys will be communicated. You guys can actually follow the Instagram account or any community, WhatsApp community in order to get the latest details. If you guys have any question or query, you guys can write in the chat box. Moving to the next question, it is the negative ions having group of atoms. So हम बात करें कि group of atoms एक negative ion में present हैं. So आपके पास all of the following is correct. आपके पास hydroxyl ion है, OH negative, इसमें भी group of atoms हैं. CO3-2 है, Cr2O7-2 है. इन सब में आपके पास क्या present है? Group of atoms ही present हैं. आपके पास these are all polyatomic ions. ठीक है. So the correct answer is all of the following. Atomicity is determined by, जब हम एटॉमिसिटी की बात करते हैं तो दैट इज बेसिकली डिटरमिन्ड बाय नंबर ऑफ एटम्स. कितने एटम्स एक सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हैं, या फिर आप कहो कि कोई भी सब्सटेंस किसी भी कंपाउंड के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है, दैट इज बेसिकली द एटॉमिसिटी. द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज डिटरमिन्स इट्स. तो कितने एटम्स एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, दैट डिटरमिन्स इट्स एटॉमिसिटी. वही वाली बात जो भी हमने की थी. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन जिंक. So आपके पास that is zinc, you have 30, that is the atomic number, and 66, that is the mass number. If you're supposed to find the number of neutrons, you're supposed to, number of neutrons is equals to mass number minus atomic number. So 66 minus 30 करोगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3. So the correct answer is going to be 36 delta. Next is the correct representation of atom with atomic number and mass number. So आपके पास जो atomic number है आप उसको Z से represent करते हो और mass number को A से represent करते हो. जो mass number होता है वो यहाँ लिखा हुआ होता है, यानी आपके पास जो A है वो यहाँ लिखा होगा और जो atomic number है जो Z है वो यहाँ लिखा हुआ होगा. कोई भी element है आप उसको X से represent करो, A is gonna be on top and Z is gonna be on the bottom. ठीक है. So आप यहाँ पे देख लो, this is the most appropriate one. ठीक है. क्योंकि बीटा में ए और जी दोनों टॉप पे हैं, चार्ली में जेड टॉप पे, दैट इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क, एंड डेल्टा में ए और जेड दोनों टॉप पे. ठीक है.
Next is the hemoglobin molecule is how many times heavier than the helium atom. So आपके पास this is basically a fact based question. It's 17,000 times. ठीक है, आप इसको किस तरह निकालोगे? मास ऑफ हीमोग्लोबिन की बात करते हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास ओवर मोलर मास. ठीक है, यहाँ मास ऑफ हीमोग्लोबिन कंपेयर टू हाइड्रोजन, इसमें आपने मोलर मास ऑफ हीलियम को डिवाइड कर देना है मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन से. यहाँ पे आपने क्या किया? Mass of hemoglobin compared to hydrogen divided by molar mass of helium. Yani mass of hemoglobin compared to hydrogen is basically 68,000 और molar mass of hemoglobin is 4. ठीक है, हीमोग्लोबिन की जब हम बात करते हैं तो उसमें जब मोलर मास क्या है इसका, बेसिकली जो मास नंबर होता है वो है. ठीक है, सो दैट इज 4. तो आपके पास दोनों की डिवीजन से आपके पास 17,000 इज द करेक्ट आंसर. दैट इज बीटा. Molecular ions are formed by passing. आपके पास अल्फा पार्टिकल्स, एक्स रेज सब हो सकते हैं. हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम, अल्फा पार्टिकल, एक्स रे सबसे हो सकता है. ठीक है, व्हिच इज एब्रिविएशन ऑफ एएमयू. एटॉमिक मास यूनिट होता है चार्ली. ठीक है, वन एटॉमिक मास यूनिट कितने किलोग्राम की इक्वल है? अब देखो वो किलोग्राम में भी पूछ सकता है, ग्राम में भी पूछ सकता है और मिलीग्राम में भी पूछ सकता है. ठीक है, तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 आपके पास आ जाता है किलोग्राम. ठीक है, और आप इसे ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो. 24 बनेगा और मिलीग्राम आई गेस 21 बनता है. तीनों यूनिट्स याद रखना. ठीक है, कुछ भी आ सकता है. द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल नहीं होते. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक एटम में इक्वल होते हैं, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा हो सकते हैं. दे मे बी इक्वल, दे मे नॉट बी. ठीक है, बट इट्स नॉट लाइक अ फिक्स्ड थिंग. मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करोगे तभी आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आते हैं. एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह दो. ठीक है, mass number is the sum of number of protons and sum of number of neutrons. So आपके पास the correct answer should be alpha for this. Which of the following element is used to treat is used for the treatment of cancer? So that is basically cobalt. ठीक है, which is the abbreviation of AMU. atomic mass unit Charlie है. Then we have atomic mass unit किसकी equal होता है? 1.66 into 10⁻⁻27. How many electrons have to be removed to ionize 1 into 10⁻⁻6 moles of neon to neon ions? ठीक है, in a neon advertising tube. ठीक है, सो आपके पास इसका करेक्ट आंसर क्या है? आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर के. ठीक है, सो आपने यहाँ पे बेसिकली करना यह है टू फाइंड द नंबर ऑफ नियॉन एटम्स इन this moles you have to use Avogadro number which is approximately 6.02 into 10⁻23 atoms per mole. ठीक है, नंबर ऑफ नियॉन एटम्स आपने इस तरीके से फाइंड कर दिए. नंबर ऑफ नियॉन एटम्स आपके पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी. सिंस इसको आपने 1 से ही मल्टीप्लाई करना है और जो पावर्स हैं वो आपने सॉल्व करनी है, तो मैं पावर सॉल्व करना बता देती हूँ. 10⁻⁻6 को आपने मल्टीप्लाई करना है 10⁻23 से. ठीक है, So when bases are same and they are multiplied by each other, देखो base is 10, जब bases same होती है और आप उन दोनों को multiply कर रहे होते हो ना, तो जो उनकी powers हैं वो आपने add करनी होती हैं. यानी 10 ऐसे ही -6 + 23 करना है आपने. अब since यहाँ नेगेटिव साइन है तो आपने डेफिनेटली इसको ग्रेटर वैल्यू का साइन पुट करना है, दैट इज पॉजिटिव, और इन दोनों को आपस में माइनस कर देना है. सो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. यस, सो आपके पास बाकी 1 से मल्टीप्लाई करना था 6.022 को, तो वो आपने कर लिया, आपके पास वैसे ही रह गया. ठीक है, टू आयनाइज द नियॉन atom to the ion, electron needs to be removed. Therefore, to ionize all these neon atoms to neon ions, you need to remove the same number of electrons. ठीक है, so आपके पास number of electrons to be removed, that is 6.022 into 10⁻17 electrons. ठीक है, so the correct answer is 1 into 10⁻⁻6. ठीक है, जो हमने यहाँ पे किया था, and into Avogadro's number, that is 6.022 into 10⁻23. Options में आपके पास solved final answer नहीं है. It was just asking which two numbers to multiply, divide, add, subtract, or whatever we're supposed to do. So the correct answer is going to be Charlie for this. The mass of atom compared to the mass of carbon-12, that is known as relative atomic mass. Relative is basically represent you're doing comparison. ठीक है, so relative atomic mass में you're comparing the mass of an atom with carbon-12, और carbon-12 को हमने standard रखा है because इसकी abundance ज़्यादा होती है, it's also stable. ठीक है, while finding the relative atomic mass, which of the following standard is used to compare the atomic mass? We have carbon-12. There are different isotopes of carbon. Carbon-13 भी है, carbon-14 भी है, जो carbon dating में use होता है. ठीक है, but आप कौन सा isotope use कर रहे हो carbon का? Carbon
12 यूज कर रहे हो. If atom has the mass number 23 and its atomic number is 11, the number of protons. ठीक है. So आपके पास number of protons किसके equal होते हैं? Simply, you don't need to solve a thing. Number of protons is equal to the atomic number. क्योंकि एक atom में number of protons and neutrons, number of protons and electrons equal होते हैं, तभी वो electrically neutral होता है. ठीक है. And that is basically its atomic number. So the correct answer is 11. If the atom has mass number 23 and atomic number 11, number of proton. Atomic number जितने होंगे उतने ही proton. Mass of hydrogen is 1.008 atomic mass unit. Its mass in kilogram is going to be. So अगर आपने किलोग्राम में फाइंड करना है तो हमें पता होना चाहिए 1 AMU कितने किलोग्राम की इक्वल है. तो ये अभी हमने पिछले एक MCQ में किया था कि 1 AMU is equal to 1.66 into 10 raised power minus 27 किलोग्राम. So आपने जितने का भी मास फाइंड करना है आप इसको उस वैल्यू से 1 AMU से मल्टीप्लाई करके ये आंसर निकाल सकते हो. यहाँ पे 23 किलोग्राम लिखा हुआ मैंने बताया. 23 is in grams and not kilogram. 24 होता है इस, बट आपके पास 27 किलोग्राम होता है. ठीक है. अल्फा इज नॉट द करेक्ट आंसर. यहाँ पे 23 मेंशन हुआ है. 1 एटॉमिक मास यूनिट कितने किलोग्राम की इक्वल है? दैट इज अल्फा अगेन. ठीक है. द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. मास ऑफ एन एटम रेंजेस फ्रॉम. सो एक एटम का जो मास है वो उसकी रेंज की जब हम बात करते हैं दैट इज रेंज फ्रॉम 1.6 into 10 raised to minus 27 किलोग्राम to 1 into 10 raised to minus 25 किलोग्राम. ठीक है. सो आपके पास दिस इज बेसिकली प्रेजेंट इन पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड. ठीक है. Evidence of atom subtopic. So the correct answer is going to be delta. The number of neutrons in H2SO4 are. अब हमने यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं इन सल्फ्यूरिक एसिड. सो कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? वी हैव 48 न्यूट्रॉन्स. ठीक है. सो एटॉमिक मास पहले आप H2SO4 का निकालो. हाइड्रोजन का मास नंबर क्या होता है? 1. H2 है तो 1 into 2 कर दिया आपने. ठीक है. देन यू हैव सल्फर. इट्स 32. एक ही सल्फर है. ठीक है. सो आपने एक ही दफा 32 लिखा. देन यू हैव ऑक्सीजन. इट इज 16. ठीक है. इसका मास नंबर 16 होता है. एंड यू हैव O4, लाइक यू हैव 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. सो आपने उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है. टोटल आपके पास 98 ग्राम पर मोल आ जाएगा. ठीक है. एटॉमिक नंबर ऑफ H2SO4 आपके पास कितना है? ठीक है. दैट इज 50. एंड फॉर्मूला आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर. ये चीज हमने की हुई है. एटॉमिक मास हमने निकाल ली. एटॉमिक नंबर भी फिगर आउट कर लिया. अब आपने उनको माइनस करके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल देना है. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बेसिकली 48. नेक्स्ट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन. सो आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसमें प्रेजेंट है? ठीक है. सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू मास इनटू अवोगाड्रोस नंबर. ठीक है. अवोगाड्रोस नंबर कांस्टेंट है. इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे उसने मास दिया हुआ है और मोलर मास गिवन है. ठीक है. सो जिसका मास ज्यादा होगा उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है. उसने क्या स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट है, यानी जिसका मास कम होगा. ठीक है. मास के साथ एक और फैक्टर भी है. सिंस आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, अगर तो सेम आपके पास कंपाउंड्स होते या सेम मॉलिक्यूल्स गिवन होते तो तब मसला नहीं था. बट यहाँ पे आप देखो आपके पास एक हाइड्रोजन है, देन यू हैव अल्कोहल, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है, N2O5 है. ठीक है. सो इसमें आपने सिर्फ मास को कंसिडर नहीं करना बल्कि इनके मोलर मासेस को भी कंसिडर करना है. ठीक है. सो हमें ये पता है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, मास और मोलर मास जब हम दोनों को देखेंगे तो आपके पास मोल्स इज इक्वल्स टू मास ओवर मोलर मास है. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू अवोगाड्रोस नंबर होता है. ठीक है. जो मैंने यहाँ पे लिख दिया. ठीक है. यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रोस नंबर आपके पास आ जाता है. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं. ठीक है. यानी आपके पास यहाँ नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करे, यानी मास ओवर मोलर मास पे. यानी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. यानी जिसका मास ज्यादा होगा और मोलर मास कम होगा उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे. उसने ये कहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके कम है, सो जिसका मास कम हो और मोलर मास ज्यादा हो, आपने वो देखना है. ठीक है. सो डेल्टा आपके पास इसका करेक्ट आंसर है. ठीक है. कि जिसका मास कम है और उसका मोलर मास ज्यादा है. ठीक है. सो आप इन सबके मोलर मास फाइंड कर लो. कार्बन 12 होता है, हाइड्रोजन 1 है, ऑक्सीजन इज 16, हाइड्रोजन अगेन 1. यहाँ पे हाइड्रोजन 2.016 होगा. यहाँ पे कार्बन इज 12 and oxygen is 32. For oxygen is 16 for 1. O2 होता तो 32 होता. ठीक है. So यहाँ पे आपने इस तरीके से इसको निकाल दिया.
सो 5.4 ग्राम ऑफ N2O5 इज द करेक्ट आंसर। आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें आपके पास बन रहे 3 × 10⁻²2। यहाँ पे आपके पास बन रहे बेसिकली इसके डेल्टा के 3 × 10⁻²22। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 6 आइसोटोप्स। सो नंबर ऑफ आइसोटोप्स भी आपने डिफरेंट उसके याद रखने कि किस एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स हैं। ठीक है, सो जब हम 6 आइसोटोप्स की बात करते हैं तो किसके 6 आइसोटोप्स होते हैं? बेसिकली कैल्शियम जो है उसके आपके पास 6 आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं। 6 स्टेबल आइसोटोप्स हैं। यू हैव कैल्शियम 40, 42, 43, 44, 46 एंड 48। आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, दैट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कार्बन कंटेनिंग a carbon compound containing carbon and oxygen has an approximate molar mass of 290. On analysis, it is found to contain 50% by mass of each element. आपके पास 50% by mass है। ठीक है, सो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी C12O9। ठीक है, कैसे? देखो, लेट द मास ऑफ अ कंपाउंड बी 100 ग्राम, मास ऑफ ऑक्सीजन आपके पास 50 ग्राम होगा, मोल्स आपके पास कितने हैं? मास ओवर मोलर मास, तो ऑक्सीजन का मोलर मास 16 होता है। मास ऑफ कार्बन भी 50 ग्राम है, बट मोल्स आपने फाइंड करने तो मास ओवर मोलर मास होता है। कार्बन का मोलर मास 12 आ गया। ठीक है, आप मोल रेशियो इसका फाइंड कर लो और उससे आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है, तो एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी अगर आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला कर देना है। ठीक है, सो आप इसको इस तरीके से कर लो और मॉलिक्यूलर मास आपके मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास आ गया, दैट इज C12O9। ठीक है, अब आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है, वी हैव C12O9। ठीक है, next is 112 milliliter of gas is produced by standard temperature and pressure by the action of 0.412 gram of ROH alcohol with the Grignard's reagent. ठीक है, CH3MgI. The molecular mass of alcohol is, अब आपने अल्कोहल की molecular mass find करनी है, so that is going to be 82.4 gram. किस तरीके से आपने निकाला इसको? सबसे पहले आपने क्या किया कि मोलर मास गैस का निकाला एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो होता है 22.4 लीटर पर मोल। ठीक है, सो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर देना, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम गिवन था, इसको डिवाइड कर दिया बाय मोलर वॉल्यूम, तो आपके पास मोल्स आ गए। ठीक है, फिर आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कोहल दैट रिएक्टेड विद द ग्रिग्नेट वो फाइंड करना है। सो बेसिकली आप यहाँ पे पहले रिएक्शन लिखोगे इन द बैलेंस्ड फॉर्म और फिर देखोगे। फ्रॉम द बैलेंस इक्वेशन यू कैन सी दैट 1 मोल ऑफ ROH यानी alcohol reacts with 1 mole of Grignard to produce 1 mole of gas. Therefore, the number of moles of alcohol that reacted with CH3MgI is equal to the number of moles of gas produced. ठीक है, यानी जितना रिएक्शन जितने अल्कोहल ने रिएक्ट किया उतने ही गैस मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अभी हमने ऊपर अल्कोहल देखा था, एन गैस हमारे पास 0.05 मोल्स है, इसका मतलब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कोहल भी 0.005 मोल्स है। फिर आपने मॉलिक्यूलर मास अल्कोहल का फाइंड कर देना है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अल्कोहल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, सो आपने यहाँ पे मास क्वेश्चन में गिवन था, नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड करके मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लिया। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अल्कोहल इज 82.4 ग्राम per mole. ठीक है, this is the procedure. Next is just a second. Till then, you guys can let me know if there are any questions. We were on 94, right? नहीं, ये वाला भी कर लिया था। 95, 96 कर रहे थे। It is the fact that 22.414 dm cube of any gas has different mass but the same number of. So आपके पास जब ये मोलर वॉल्यूम है, ठीक है, सो मोलर वॉल्यूम एनी गैस आपके पास मास तो डिफरेंट हो सकता है बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिकल्स या एटम सेम होंगे क्योंकि नंबर ऑफ मोल सेम है। जब नंबर ऑफ मोल सेम होते हैं तो मोल्स इनटू अवोगाड्रोस नंबर करते हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल आते हैं। उस पार्टिकल्स में एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस कुछ भी हो सकता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी ऑल ऑफ द फॉलोइंग, या फिर मॉलिक्यूल कह दो, ऑल ऑफ द फॉलोइंग है नहीं तो आप यहाँ पे गैस की बात हो रही है तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, one molecule of oxygen has the same mass as, so आपने mass find करना है।
एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू अवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू मास ओवर मोलर मास इनटू अवोगाड्रोस नंबर, यानी वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हैज द सेम मास एज, आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। सो उसका क्या सेम मास होगा एज 1 ग्राम ऑफ सल्फर, ठीक है। कैसे, देखो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हैज मास 32 ग्राम, 1 ग्राम ऑफ सल्फर का मास भी 32 ग्राम है, ठीक है। आपने सबसे पहले फाइंड कर देना है ऑक्सीजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मास, ठीक है। सो आपने यहाँ पे क्या कर देना है, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। या फिर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन वैसे ही देख लो, मास उसने पूछा है ना, तो आपके पास इतना फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। ऑक्सीजन 16 होता है, 16 + 16 करो तो 32 आ जाएगा, ठीक है। सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना है, 32, दैट इज सेम एज दैट ऑफ अ 1 ग्राम एटम। ग्राम एटम क्या होता है, मोल ही को कहते हैं। सो 1 ग्राम एटम ऑफ सल्फर, एक ही बात है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन वुड बी, आयरन का आपके पास क्या होता है, मोलर मास, दैट इज 56। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन इन Fe2O3 वुड बी, आयरन का वेट कितना है टोटल आपके पास, Fe2O3 उसने दे दिया, उसमें से आयरन का वेट कितना है आपने ये फाइंड करना है। सो द करेक्ट आंसर इज 18.6, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट डेफिनेशन क्या होता है, वेट ऑफ अ सब्सटेंस रिक्वायर्ड टू कंबाइन और डिस्प्लेस 8 ग्राम ऑक्सीजन और 1 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है। सो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स is enough to displace and combine with hydrogen या oxygen in Fe2O3। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो फेरस की, दैट इज Fe2O3 में उसकी +3 होती है। ऑक्सीजन क्या है, दैट इज -2 इंटू 3 कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -6, और उस -6 को यहाँ करने के लिए 2 इंटू +3 करोगे तो +6 बन जाएगा। -6 और +6 ये दोनों आपके पास, इस वजह से Fe2O3 इज न्यूट्रल इन नेचर, ठीक है। इट मींस 1/3 ऑफ फेरस मोल इज इनफ टू कंबाइन विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन इन Fe2O3 इज, आपने 55.8 को डिवाइड कर दिया 3 से, आपके पास 18.6 बन गया, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ, ये वही वाली बात है 18.6, एटम्स ऑफ हीमोग्लोबिन इज हेवियर देन हाइड्रोजन एटम्स, सो द करेक्ट आंसर इज 68,000 टाइम्स। एटम ऑफ हीमोग्लोबिन इज 68,000 times heavier than the hydrogen atom. Which of the following statement is true about Avogadro's hypothesis? Under similar condition of temperature and pressure, gases react with one another in the simple ratio. Similar आपके पास temperature और pressure है, at NTP all gases contain same number of molecules. Gases always react with gases only at a given temperature and pressure. Under similar conditions of temperature and pressure, equal volume of gas contains same number of molecule. जब वॉल्यूम सेम होगा गैस का, so number of mole सेम होंगे। जब number of mole सेम है तो number of molecule सेम है, क्योंकि number of molecules is equal to mole into Avogadro's number. Avogadro's number is a constant already, ठीक है। so आपके पास यहाँ पे number of molecules सेम होंगे क्योंकि number of mole सेम है। number of moles कब सेम है, क्योंकि आपके पास क्या है, वॉल्यूम जो है दे आर आल्सो इक्वल, ठीक है। Avogadro's hypothesis is applicable to, so आपके पास Avogadro hypothesis is applicable for only ideal gases, ठीक है। उसी में हम कह रहे होते हैं कि number of moles and volume are directly proportional to each other. The relative atomic mass of oxygen is 16 AMU. What is the mass of 2 moles of oxygen gas? ठीक है। so ऑक्सीजन गैस की 2 मोल्स की बात करें, so that is 64 ग्राम, ठीक है। हम यहाँ पे मोल इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास होता है। आपके मोल उसने दे दिए 2, मास और मोलर मास 32 हमें पता है। सो मास फाइंड करने के लिए आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 64 आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, सो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आपने बताने हैं ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन, मास उसने दे दिया 16, डिवाइड कर दो मोलर मास से, ऑक्सीजन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपने फाइंड करना है दैट कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इसको सिंपल तरीका मैं बताती हूँ, देखो एक मोल है ना, जब कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोल है तो उसमें यहाँ पे देखो 16 + 16, ऑक्सीजन कितने 32 ग्राम। अब उसने कहा है 16 ग्राम हो तो 32 का हाफ कर दो, यानी यहाँ 1 मोल का भी हाफ कर दो तो आपके पास आ जाएगा 0.5 मोल, सिंपल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव number of moles present in 0.6 gram of silica. So आपके पास
ग्राम मास उसने दे दिया, एटॉमिक मास इज, सिलिकॉन का 28 होता है, ऑक्सीजन का 16 है। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स उसने पूछ लिए, मास दे दिया है, आपने क्या करना है यहाँ पे मास डिवाइडेड बाय मोलर मास कर देना है। ठीक है, सो आपके पास करेक्ट आंसर इसका क्या आएगा, मोलर मास इसका होता है 60, तो आपने 0.6 को डिवाइडेड बाय 60 कर देना है। इस तरह सॉल्व करोगे विदाउट कैलकुलेटर, 0.6 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, 60 है ना, हाँ। तो 0.6 को खोल के लिखो 6/10 डिवाइडेड बाय 60, यानी आप इसको इस तरह लिख सकते हो 6/10 मल्टीप्लाई बाय 1/60। ठीक है, तो 6 1 6 6 10 60, 1/10 इंटू 10 100 हो जाता है, यानी 0.01। इस तरीके से आप विदाउट कैलकुलेटर इसको सॉल्व करोगे, अल्फा इसका करेक्ट आंसर है। 3 into 10 raised power minus 21 moles of an amino acid have molecular mass इतना, what would be the molecules? So number of molecules आपके पास क्या होते हैं, यहाँ उसने आपको मॉलिक्यूलर मास भी दिया हुआ है और मोल्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू अवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, मोल्स उसने आपको दिए हुए हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दो अवोगाड्रोस नंबर से, 3 6 आर 18 होता है, और 10 की पावर सॉल्व कर दो। 10 की पावर्स वही जिस तरह मैंने बताया, व्हेन बेसिस आर सेम एंड दे आर मल्टीप्लाइड बाय ईच अदर देयर पावर्स आर एडेड, -21 + 23 हो जाएगा, तो आपके पास बड़ी वैल्यू का साइन आएगा, दैट इज पॉजिटिव n2। तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 6 2 आर 6 3 आर 18, 18 इंटू 10 रेस पावर 2, यानी 18 इंटू 100, तो आपके पास आ गया 1800। ठीक है, 1800 करेक्ट है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी क्लोरीन एटम्स आर इन 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन। ठीक है, सो आपने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने, मोल्स इनटू अवोगाड्रोस नंबर कर दो, मोल्स कितने 2, अवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 रेस पावर -23। ठीक है, हाउ मेनी क्लोरीन एटम्स उसने कहा था, तो आपने क्या कर देना है 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन, सो आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स करने के लिए 2 इंटू अवोगाड्रोस नंबर कर देना है। ठीक है, यानी 2 मोल्स इंटू अवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास इतने आ गए, सिंस ईच क्लोरीन एटम कंटेन्स, देखो उसने कहा है नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स इन 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन, यहाँ पे जो क्लोरीन लिखा हुआ है ना, दैट इज बेसिकली द गैसियस फॉर्म, यानी आपके पास क्लोरीन गैस है, यानी Cl2 है, तो 2 मोल्स आपने Cl2 के लिए, तो आपने 2 इंटू अवोगाड्रोस नंबर करना है। ठीक है, सो बेसिकली द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी डेल्टा, क्योंकि जो क्लोरीन ले रहे हो दैट इज बेसिकली द मॉलिक्यूलर फॉर्म। ठीक है, वरना नेसेंट फॉर्म में क्लोरीन, इन एन एटॉमिक फॉर्म इट इज वेरी मच रिएक्टिव। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लोरीन किस फॉर्म में ले रहे हो, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, इसकी वजह से 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन है, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट 6 एटम्स ऑफ क्लोरीन, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स हैं, तो 2 के अंदर 4 होंगे। ठीक है, यहाँ तक इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस यू गाइस कैन लेट मी नो। ऑल क्लियर? चलो परफेक्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन, सो लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके अंदर है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये वही वाला फॉर्मूला दोबारा बताऊंगी, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है दैट इज इक्वल टू मोल्स इनटू अवोगाड्रोस नंबर, अवोगाड्रोस नंबर कांस्टेंट, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, यानी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ओवर मोलर मास, नंबर ऑफ जिसका मास ज्यादा उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा, और जिसका मोलर मास कम उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा। ठीक है, सो यहाँ पे मास देखो किसका ज्यादा है और मोलर मास किसका कम है, ऑक्सीजन का मोलर मास हो गया 16 16 32। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन 12 32 प्लस 12 आपने कर दिया, उससे ज्यादा हो गया हाइड्रोजन का 2.06 016, एंड नाइट्रोजन का आपके पास इट्स गोना बी आई गेस लेस देन, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि इसका जो मोलर मास है वो सबसे कम है, जिसका मोलर मास सबसे कम उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा। ठीक है, सो आपके पास 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है, हाइड्रोजन का 2.016। ठीक है, the weight of 350 milliliter of diatomic gas at 0 degree Celsius and 2 atm pressure is 1 gram, weight of one atom, ठीक है, is, तो आपने वन एटम का वेट फाइंड करना, दैट इज गोइंग टू बी 16 डिवाइडेड बाय n, n इज द एवोगाड्रोस नंबर, ये आपने आइडियल गैस इक्वेशन के थ्रू सॉल्व किया, pv is equals to nRT।
P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स है, R आइडियल गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन के इक्वल होता है, ठीक है। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं गैस के, ठीक है, PV इक्वल टू nRT से। फिर आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ अ डायटोमिक गैस बाय यूजिंग द वेट एंड नंबर ऑफ मोल्स, यानी मोलर मास वेट ओवर मोल, यानी वही वाली बात है, number of moles is equals to mass over molar mass, तो molar mass is equals to mass over number of moles, ठीक है। so weight over number of moles हमने यहाँ पे लगा दिया, गैस डायटोमिक है तो molecular mass is approximately 2 times the molar mass of the single atom, डायटोमिक का यही मतलब होता है, ठीक है। so आपने यहाँ पे molar mass एक एटम का पहले निकाला, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके 2 एटम्स का molar mass निकाल लिया, ठीक है। so आपके पास इसका करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज 16/n, और n आपके पास क्या है, दैट इज द एवोगैड्रोस नंबर। The number of moles of Cr2O7 needed to oxidize 0.136 equivalent of N2H5 according to the reaction, given reaction है। so इसका आपके पास करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज 0.0227, ठीक है। so n फैक्टर आपके पास इसका क्या है, Cr2O7 -2 का जो n फैक्टर है दैट इज 6। इक्विवेलेंट आपके पास इसका जो चाहिए, दैट इज बेसिकली द इक्विवेलेंट ऑफ N2H5 पॉजिटिव, दैट इज 0.136, ठीक है। मोल्स आपने इसका फाइंड करना है तो दोनों क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। सो आपके पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 0.0227, ठीक है, डेल्टा। Next is the slope of the curve obtained by plotting concentration change with time. So अगर आप concentration change और time का slope plot करते हो तो slope किसके equal होता है, आपने y और x axis को आपस में divide कर देना है, ठीक है, slope find करने के लिए। So concentration over time किसके equal होता है, rate of change of concentration, that is basically equal to rate of the reaction, ठीक है। rate determining step आपके पास क्या होता है, that is the, it is also called, क्या उसको कहा जाता है, रेट लिमिटिंग स्टेप। रेट स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट को क्या कहा जाता है, दैट इज बेसिकली द वेलोसिटी कांस्टेंट डेल्टा। नेक्स्ट इज द रेट इक्वेशन, आपके पास क्या है, दैट इज बेसिकली एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन है, थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन है, बेस्ड ऑन हिट एंड ट्रायल है। रेट इक्वेशन इज बेसिकली द एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन, ठीक है। स्लोप ऑफ द कर्व कैन बी डिटरमिन्ड बाय, आपने जब स्लोप निकालना है तो आपने क्या करना है, ड्राइंग अ टेंजेंट टू द कर्व, कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ऑल ऑफ द फॉलोइंग, तो आपने टेंजेंट ड्रॉ कर देना है टू द कर्व। नेक्स्ट इज लिमिटिंग रिएक्शन कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट बनना है, लिमिटिंग रिएक्शन किस चीज को डिटरमिन करता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन को क्या चाहिए होता है, उसको कम एनर्जी चाहिए होती है। एक्सोथर्मिक में ऑलरेडी आपके पास सिस्टम से एनर्जी निकल रही है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन रिक्वायर लेस एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट इज द रेट, इन द रेट इक्वेशन k r is equals to k a raised to the power a and b raised to the power b, a and b are exponents, वो बेसिकली किसको डिटरमिन कर रहे होते हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को डिटरमिन कर रहे हैं, ठीक है। The mechanism of reaction can be understood by, तो अपने मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करना है, आप किस तरीके से करोगे, एक्सपेरिमेंटल डिटेल से मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को वो करोगे, ठीक है, मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करोगे। द रेट डिटरमिनिंग स्टेप ऑफ द केमिकल रिएक्शन व्हिच अकर्स इन मोर देन वन स्टेप, यानी जब आपने रेट डिटरमिनिंग स्टेप फाइंड करना है फॉर रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रहा है, उसमें आप जो स्लोएस्ट स्टेप है उसको देखते हो इन ऑर्डर टू फाइंड द रेट। Branch of physics which deals with the structure and properties of atom as determined by the electron outside the nucleus. So आपके पास structure and properties of atom की बात करें तो that is basically atomic physics. Branch of physics which deals with the structure and properties of various phenomena regarding the nuclei, that is basically nuclear physics. One light year किसके इक्वल होता है, distance traveled by earth in 1 year, distance traveled by star in 1 year, distance traveled by light in 1 year, चार्ली, ठीक है। 1 light year का distance कितना है, distance traveled by light in 1 year, which set of the prefixes gives values in increasing order, ठीक है। so आपके पास कौन सा सेट आ जाता है, पिको, माइक्रो, मेगा एंड गीगा, ठीक है। so पिको इज बेसिकली 10⁻12,
माइक्रो इज 10⁻⁻6, मेगा 10⁻+6 होता है, एंड गीगा इज 10⁻9। तो ये आपके पास क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। -12, -6, 6 एंड 9। -12 इज लेस देन -6, -12 इज लेस देन -6। ठीक है, नेगेटिव में काउंटिंग इस तरीके से चलती है। नेक्स्ट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर इज लेंथ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कह दो। 1 रेडियन इन डिग्रीज इज इक्वल टू 57.3 डिग्रीज। ठीक है, आपने 180 को पाई से डिवाइड कर देना, ये वैल्यू याद कर लो, बिकॉज विदाउट कैलकुलेटर्स को डिटरमिन करना इज क्वाइट अ थिंग। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी? कैलोरी है, किलोवाट है, जाउल है, नन ऑफ दीज। So the correct answer for this is kilowatt. Kilowatt is not the unit of energy, it is energy, it is a unit of power. ठीक है, a radar signal is beamed towards the planet from Earth and its echo is received 7 minutes later. It's the distance between the planet and Earth is this. Velocity of the signal आपने इस तरीके से find करनी है. So when the echo is received 7 minutes later, meaning the signal is traveled to the planet and back to the Earth in that time. Okay, that is the echo. So therefore, the time taken for the signal to travel one way is half of the 7 minutes. यानी पूरा time from the signal आपके पास ट्रैवल कर रहा है टू द प्लैनेट एंड देन बैक टू द अर्थ, आपको 7 मिनट्स लग रहे हैं। तो अगर आपने सिग्नल को एक वन वे जाते हुए देखना है तो आपने 7 का हाफ ले लेना है। ठीक है, सो टोटल टाइम 7 मिनट्स है, सेकंड्स में कन्वर्ट करो 420 सेकंड्स। वन वे टाइम डिवाइडेड बाय 2 कर दो, दैट इज 210 सेकंड्स। वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो, वन वे की हम बात करें तो आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। Which experimental technique reduces the systematic error of the quantity being investigated? तो systematic error आपने अगर करना है तो आपने adjust करना है ammeter to remove its zero error before measuring the current. ठीक है, करंट मेजर करने के लिए जीरो एरर रिमूव करो ताकि आपके पास सिस्टमैटिक एरर ना आए। रेक्टेंगुलर प्लेट हैज लेंथ, साथ एरर भी दिया हुआ है, उसने जीरो एरर करेक्शन की हुई है, एंड विड्थ भी दी हुई है, उसमें भी जीरो एरर करेक्शन की हुई है। मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट इज, तो आपके पास मैक्सिमम कितना एरर परसेंटेज है, दैट इज 2%। ठीक है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ लेंथ आपने क्या कर देना है, 2 प्लस इंटू माइनस 0.02 था ना, यानी 0.02 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 आपने कर दिया 1%। सेम गोज विद विड्थ 1%, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2%। ठीक है, the density of a cube is determined by measuring its mass and the length of the side. Maximum errors in the measurement of its mass and length are 4% and 3% respectively. Maximum error in density आपने क्या, mass, जब हम डेंसिटी की बात करते हैं तो mass per unit volume is basically density। ठीक है, सो mass और length में उसने आपको एरर बता दिया 4। वॉल्यूम क्या होता है आपके पास, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। ठीक है, सो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, करेक्ट आंसर इज गोना बी 13, बिकॉज देखो आपके पास परसेंटेज एरर इन मास इज 4%, लेंथ का 3% है। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ का क्यूब, जो मैंने बताया लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ होता है, यानी आपने इसको 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास 9 आ गया। ठीक है, और आपने एंड पे क्या, इस 9 में 4 ऐड कर दिया तो आपके पास क्या आ गया, 13। 4% was the mass का percentage error। ठीक है, next is, we miss a question did we? हाँ ठीक है, in resonance tube with a tuning fork of frequency 512 Hz, the first resonance occurs at the water level equal to 30.3 centimeter, and second resonance occurs at this particular centimeter. The maximum possible error in the speed maximum possible error कितना आ रहा है, that is 204.8 centimeter। सबसे पहले आपने क्या कर देना है, फर्स्ट रेजोनेंस अकर एट लेंथ, सेकंड रेजोनेंस आपने देख लिया L2, दैट इज 3 लैम्डा बाय 4। स्पीड ऑफ साउंड इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, दोनों v इज इक्वल टू f लैम्डा हमें पता है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी हमें पता है, फर्स्ट रेजोनेंस भी पता है, सेकंड रेजोनेंस भी पता है। रेजोनेंस कंडीशन से आपने क्या कर देना है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर देनी है। ठीक है, फिर v इज इक्वल टू f लैम्डा में लैम्डा की वैल्यू पुट करके वेलोसिटी फाइंड कर देनी है, और फिर आपने एरर्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, सो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन वर बी ऑन।
just a second. हाँ, so for that the correct answer was 204.8 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. जो हमने पूरा प्रोसीजर देखा उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको प्रोसेस किया और हमारे पास एंड पे हमारा डिजायर्ड आंसर आ गया. जीरो इज सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन, जब हम जीरो की बात करते हैं अगर वो दो डिजिट्स के दरमियान प्रेजेंट है तभी वो सिर्फ सिग्निफिकेंट होगा. The length and width आपको given है. Most accurate area expressed is in terms of significant figures. तो आपके पास most accurate area कौन सा आएगा? That is 0.04. आपने length into width को multiply कर देना है और आपके पास आंसर आ जाएगा. The diameter of a wire is measured by using a micrometer screw gauge with the least count of 0.01 millimeter. Which of the following readings will be correct? So आपके पास इसका correct answer क्या होगा? That is 2 millimeter. ठीक है, क्योंकि since least count is 0.01 millimeter, the diameter must be expressed in the multiples of 0.01. ठीक है, so 2 millimeter is basically 200 times 0.01. that is why Charlie आपके पास इसका correct answer है. multiple होना चाहिए, ये चीज आपने देखनी थी. Determine the significant figure in 0.0085. so आपके पास सिर्फ दो significant figures हैं इसमें. ठीक है, that are 8 and 5. Zeros are not considered significant. Molar mass of water, तो आपके पास किलोग्राम पर मोल गिवन है. ठीक है, किलोग्राम पर मोल है इस वजह से आपके पास चेंज हो जाएगा, वरना 18 ग्राम पर मोल होता है जनरली. जब किलोग्राम उसने दिया है तो आपके पास पॉइंट्स के अंदर चेंजेस आ जाएगी. आपके पास किलो इज 10 रेज़ पावर 3, सो आप 3 डेसिमल प्लेसेस पीछे चले जाओगे 18 से, तो आपके पास 0.018 बन जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन ये मेंशन हुआ है ना, दिस इज द क्वेश्चन मेंशन्ड. ठीक है, नेक्स्ट इज डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम एंड एक्सेलरेशन रिस्पेक्टिवली. तो हम जब वॉल्यूम की बात करते हैं दैट इज एल क्यूब. ठीक है, एल क्यूब देखो एक ही ऑप्शन में चार्ली में, सिंपल. और एक्सेलरेशन की बात करें तो एल टी माइनस टू होगा, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर. ठीक है, डायमेंशन ऑफ प्रेशर, जब हम प्रेशर की बात करते हैं तो उसकी डायमेंशन क्या है? दैट इज डेल्टा, यानी एम एल माइनस वन टी माइनस टू. प्रेशर आपके पास अगर हम बात करें तो हम कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, और एरिया आपके पास क्या होता है? मीटर स्क्वायर. सो इस मीटर से ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, किलोग्राम डिवाइडेड बाय मीटर सेकंड स्क्वायर. सो किलोग्राम इज मास और एल माइनस वन टी माइनस टू डेल्टा. ठीक है, if A is the fundamental dimension of ampere, then the dimension of magnetic field strength is. ठीक है, एम्पेयर इज करंट. ठीक है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं? एफ इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा. करंट आना चाहिए, आई इज करंट, एल इज लेंथ, बी आपने फाइंड करना है, फोर्स न्यूटन है, वो आप किलोग्राम की फॉर्म में लिख सकते हो. यस, सो बी की आपने बात करनी है, दैट इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय आई एल. ठीक है, एफ इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर divided by length is meter and ampere, sorry, length is meter and current is ampere. ठीक है, करंट आपके पास किस में होता है? एम्पेयर में. ये मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, यू हैव मास और सेकंड टी माइनस टू और ए माइनस वन. ठीक है, टी माइनस टू ए माइनस वन, हाँ बीटा, सिंपल. ठीक है, मास से मास कैंसिल आउट हो गया. When the dimension of both sides of equation are equal, then the equation is said to be. So आपके पास डायमेंशन इक्वल है तो वो होमोजेनस है. ठीक है, होमो सेम होता है. जो द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. सो आपके पास जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो डायमेंशनलेस है. पावर की भी डायमेंशन होती है, फ्रीक्वेंसी की भी होती है और इम्पल्स की भी होती है. इम्पल्स इज फोर्स इनटू चेंज इन टाइम. पावर की बात करें दैट इज बेसिकली पावर वर्क डन पर यूनिट टाइम, और फ्रीक्वेंसी की भी आपके पास दैट इज नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम डायमेंशन होती है. ठीक है, द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन बेस यूनिट इज. सो आपके पास टेम्परेचर का ऐसा यूनिट इज केल्विन, बेस यूनिट में भी वही होगा. इन एक्सपेरिमेंट द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट इज मेजर्ड विद द मीटर रूल, जिसकी एक्यूरेसी 2 plus into minus 0.1 centimeter. If the length of the plate is measured 16.3 centimeter, the number of significant figures will be.
16.3 में you have three significant figures 1, 6 और 3. ठीक है. The time dependence of physical quantity P is given by P is equals to P naught E minus A T square where A या अल्फा कह दो is constant and T is time. इसमें आपके पास constant क्या है? That is basically it has dimensions T minus 2. ठीक है. So आपके पास जो ये है इसकी क्या है? You have the dimension. ठीक है. आप इस इक्वेशन को देखो और वहां से आप यूनिट पहले निकालते हो और यूनिट से आप डायमेंशन निकाल सकते हो. अल्फा कांस्टेंट है. ठीक है. और टी आपके पास क्या है? दैट इज टाइम. तो आपके पास जो कांस्टेंट है उसकी जो डायमेंशन है दैट इज टी माइनस 2. ठीक है. If force, length and time are fundamental units, what will be the dimensional formula for mass? ठीक है. तो आपके पास होता है F is equals to ma, यानी mass into force. What will be the dimensional formula of mass? Mass को इधर ही रहने देना. Force over acceleration होगा. यानी force divided by acceleration आपके पास क्या होता है? L t minus 2. तो आपके पास क्या होगा? F L, हमने यूं करना था, force divided by length over t. L divided by t minus 2 यानी F into t square divided by L. यानी F into time का होता है t और लेंथ L. तो एफ टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल. ठीक है. वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ. अर्थ की रेडियस की वैल्यू 6.4 इंटू 10 रेज पावर 6 है. फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑन अर्थ. तो अर्थ का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करते हो? दैट इज ऑप्शन सी 4/3 पाई आर क्यूब ई. ठीक है. वैल्यू ऑफ जी की अगर हम बात करें दैट इज लीस्ट एट द इक्वेटर. ठीक है. इक्वेटर पे सबसे कम होती है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज लीस्ट एट इक्वेटर कंपेयर टू द लैटिट्यूड्स. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज डिफरेंट डायमेंशंस. डायमेंशंस किसके डिफरेंट है? डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स तो डेफिनेटली डिफरेंट होंगे. फॉर्मूलाज भी डिफरेंट होते हैं. सो आर द डायमेंशंस. ठीक है. पोटेंशियल डिफरेंस सेम है. वोल्टेज सेम यूनिट्स होते हैं. हीट एनर्जी, वर्क डन, चेंज इन वर्क डन, वर्क डन चेंज इन एनर्जी की इक्वल दैट इज आल्सो हीट. सेम यूनिट्स होते हैं. प्रेशर, स्ट्रेस, यंग मॉड्यूलस सेम. ठीक है. ई ओवर म्यू डायमेंशन. ई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है. म्यू आपके पास परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है. आपने इसकी डायमेंशन फाइंड करनी है. सो आपने बेसिकली क्या कर देना है? यूनिट फाइंड कर देना है दोनों को डिवाइड करके. और उसी तरह मास को एम कैपिटल एम से, लेंथ को कैपिटल एल से और टाइम को टी से आपने इस तरह शो कर देना है. ठीक है. और एम्पेयर करंट के लिए आ जाएगा. Dimension of H over E, Planck's constant and photonic charge is same as that of. तो आपने दो का कंपेयर कर देना. इट्स सेम एज दैट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. पहले दोनों को यूनिट निकालना है, फिर डायमेंशन निकालनी है डिवाइड करके. ठीक है. एंड फिर आपने मैग्नेटिक जो फ्लक्स है दैट इज बी ए कॉस थीटा. ठीक है. उसकी भी डायमेंशन चेक कर लेनी है. S is equals to 1/3 एफ टी क्यूब. F is the dimension. आपने F की डायमेंशन फाइंड करनी है तो आपके पास क्या आएगी? एम नॉट एल टी माइनस 3. ठीक है. यानी आपने S इज इक्वल टू 1/3 एफ टी 3. F को अकेला छोड़ दो. 3s डिवाइडेड बाई टी क्यूब. 3 तो कांस्टेंट है. तो आपके पास क्या आ जाएगा? बेसिकली S दैट इज द लेंथ डिवाइडेड बाई टी माइनस 3. ठीक है. Which of the following sets cannot enter into the list of fundamental quantities in any system? So आपके पास लेंथ, टाइम और वेलोसिटी. ठीक है. these are the fundamental quantities क्योंकि आप velocity को एक्सप्रेस कर सकते हो in terms of length and time. ठीक है. आपके पास क्या होती है? velocity मीटर पर सेकंड in length over time. Next is the kilowatt. So you guys can let me know if there are any questions or queries.
If there are any questions or queries, you guys can let me know by writing them in the chat box. Candela is the unit name of which quantity? तो आपके पास it's the unit of light intensity. ठीक है. डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होता है? T-1, क्योंकि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम होता है, तो टाइम का इनवर्स आप लेना है आपने सिर्फ. ठीक है. यूनिट ऑफ वर्क इन MKS. सो आपके पास दैट इज बेसिकली वर्क का यूनिट क्या होता है? वर्क एंड एनर्जी इन MKS सिस्टम दैट इज जूल. ठीक है. Which of the following just a second. Which of the following periods is called period of classical physics? ठीक है. सो आपके पास डिफरेंट टाइम रेंजेस उसने दी हुई है और उसने कहा है कि क्लासिकल फिजिक्स किस पीरियड को कहा जाता है. ठीक है. सो दैट इज बेसिकली 1780 to 1890 AD. ठीक है. इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऐसे यूनिट ऑफ मास क्या है आपके पास? किलोग्राम. ग्राम में भी दिया हो तो आपने कन्वर्ट करना होता है, किसी और में दिया हो कन्वर्जन होगी. Which of the following is not base unit in SI system? Ampere second, meter per second. Meter per second is not base, is derived. ठीक है. Dimension of acceleration that is LT minus 2. Velocity of particle is related to time according to the equation V is equals to ct square. Dimension of the constant is वेलोसिटी और टाइम की बात करें, इसका मतलब c कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम आपने कर दिया, यानी LT-4. वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम आपने कर दिया रेज टू द पावर 3, तो टाइम रेज टू द पावर 4 हो गया डिनोमिनेटर में, ऊपर लेंथ ही रह गई. विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द गिवन मोशन इज अ टाइप ऑफ 2D मोशन? जब हम 2D मोशन की बात करते हैं तो आपके पास ये सारी 2D मोशन है. प्रोजेक्टाइल मोशन हमने डिस्कस किया था, 2D होता है. पेंडुलम का और सर्कुलर मोशन भी 2 डायमेंशनल है. A stone is thrown horizontally at 2 meter per second from a building at height 5 meter. Then just below hitting the ground, उसकी acceleration आपके पास कितनी हो जाएगी? So that is acceleration due to gravity. The acceleration of a stone just before hitting the ground will approximately be equal to acceleration due to gravity. This is because the stone experiences only acceleration due to gravity in the vertical direction. Okay, that is the downward direction. At every point in trajectory of a projectile, which of the following quantity is always zero? So आपके पास टोटल वेलोसिटी कभी जीरो नहीं होती. इवन एट द हाईएस्ट पॉइंट आपके पास y कॉम्पोनेंट होता है, वो जीरो हो जाता है, बट vx कांस्टेंट रहता है. क्योंकि vx कांस्टेंट है तो आपके पास जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है ना, वो क्या रहती है? जीरो रहती है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. सो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो है, तो एक्सेलरेशन भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की जीरो होती है. A projectile is launched at vertical kinetic energy k at angle of 8. In variation, its variation with kinetic energy is, so that is parabolic. Projectile motion आपके पास parabolic होता है because the vertical position of an object is influenced only by a constant acceleration and also because horizontal velocity आपके पास क्या होती है? Constant है और उसका acceleration क्या होता है? Zero होता है. If a projectile is launched at 3 meter per second velocity at 60 degrees angle at highest point, then at the highest point the horizontal velocity कितनी होगी? तो highest point to horizontal velocity is going to be 1.5. V not cos theta वैल्यू आपने पुट कर देनी horizontal velocity at highest point फाइंड करने के लिए. ठीक है. और इसको सॉल्व कर देना. अच्छा, जो cos sin tan की वैल्यूज है ना, ये भी याद रखनी है. When a stone is thrown horizontally at 2 meter per second from a building of height 5 meter, then just before hitting the ground, उसकी acceleration आपके पास कितनी हो जाएगी? वही 9.8 वाली बात. ठीक है. Density of blood is, जब blood की density की बात करते हैं तो blood is more denser than जब हम blood और water की बात करते हैं तो blood is like nearly water. ठीक है. सो आपके पास इनका कंपेरेबल डेंसिटी होती है. ठीक है. 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आपके पास डेंसिटी ऑफ वाटर है और ब्लड की 1060 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है. नियरली इक्वल, थोड़ा सा ही ज्यादा डेंस होता है. विस्कस ड्रैग ऑन स्फेरिकल स्मॉल स्फेरिकल बॉडी मूविंग विद स्लो स्पीड v, दैट इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल है? विस्कस ड्रैग v के. ठीक है. Fs इज इक्वल टू 6 बाय Rnv. ठीक है. एक्सेलरेशन ऑफ अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट इन फ्लूइड किस पे डिपेंड कर रही होती है? एक्सेलरेशन है तो ये वेलोसिटी पे, विस्कोसिटी पे, डेंसिटी पे, सब पे डिपेंड करेगी. और फॉलिंग फ्लूइड की बात हो रही है. ठीक है. 8 drops of water each radius 2 millimeter are falling through the air at terminal velocity of 8 centimeter per second. If the coalescence of to form a single drop, the terminal velocity combined will be the
आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करनी है तो आपने क्या कर देना है, n रेज़ टू द पावर 2/3 vt। नंबर ऑफ ड्रॉप्स है n, ठीक है, थस आपने इसमें ये वैल्यू पुट कर देनी है और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज vt इज द टर्मिनल वेलोसिटी। n रेज़ टू द पावर 2/3 यानी 8 रेज़ टू द पावर 2/3 आपने कर देना है, ठीक है, यानी 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 2/3 आपने कर देना है, ठीक है। आपके पास इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 रेज़ टू द पावर 2, तो 8 8 ज़ार 8 8 ज़ार क्या होता है बच्चों, 8 4 ज़ार 2/3 था ना यहाँ पे, आपके पास क्या आ जाएगा 32, ठीक है। ऐसे यूनिट ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, यानी आपके पास रेट यानी किस टाइम पे फ्लूइड फ्लू कर रहा है उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, दैट इज मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। चार्ली फैक्ट बेस है। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चंस, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग पोर्शन नाउ, वी आर डन विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, ऑल द साइंसेस पोर्शन। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज you guys can write them in the chat box, ठीक है। It was so quiet you dash can hear a pin drop. It was है, so आप यहाँ पे could लगाओगे, can नहीं लगेगा, can is the present form, could is the past one, ठीक है। Bilal dash live with his brother, तो Bilal basically lives with his brother, singular है तो आप s लगाओगे। I think a man over there is very ill, he can't stand, the man, एक specific बंदे की बात कर रहे हो तो the लगाओगे। Last Sunday my father, लास्ट संडे की बात हो रही है, पास्ट की तो टुक आएगा, ठीक है, विल टेक नहीं आएगा, हैज टेकन नहीं आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, लास्ट ईयर आई गो टू इंडिया, आई वेंट टू इंडिया, आई एम गोइंग, आई विल गो। आई विल इज शोइंग फ्यूचर, आई एम गोइंग एंड आई गो इज शोइंग प्रेजेंट, आई वेंट इज शोइंग पास्ट। लास्ट समर है तो वेंट होगा। आई इट रेन्ड सिंस लास्ट ईयर एंड इट लुक्स as if it may rain all day. It has been raining since लगा हुआ है तो has been raining होगा, ठीक है। While climbing onto the mountain top, while climbing onto the mountain top, I encountered a stranger animal which I'd never seen before. So क्या होगा encountered? Uh, Next is, according to the information on this page, items bought before 1940 cost more than items made after that year. She thanked me for what I she thanked her so for what I did, ठीक है। Each and every member dash to vote, each and every member has to vote, each and every की बात हो रही है, ठीक है। when we are in Singapore last year we dash when we were in Singapore last year we dash at a beautiful resort near an island, so we were है तो आपके पास stayed आएगा। some of the books on the table, some of the books की बात हो रही है, so they belong to me. It is better for me to dash than to shed the blood of an innocent boy. It is better for me to die than to shed the blood. ठीक है? Sorry, she can't come to the phone. She dash a bath. She is having a bath. In the newly elected president and CEO of the newly established branch of our company, so एक ही बंदे की बात हो रही है, that person has arrived. And we raised more than a barrel of corn with shock. And we raised more than a barrel of corn, more than a barrel of corn of the shock to the shock, yeah, for the shock. So the correct answer is going to be with a shock. ठीक है, preposition का correct use था. One of the friends who live nearby my house is a singer and a teacher. One of the friends who live nearby my house are. One of the friends की बात हो रही है तो आपके पास क्या लगेगा, one of the friends है तो one of the friends who live nearby my house is a singer and teacher, ठीक है। Using a coercive measure, the police is hoping to get some useful information from the people. The police are hoping, ठीक है, police plural है, ठीक है।
are hoping to get some useful information from the people. Hoping to using corrective measures, the police are hoping to get some useful. यहाँ पे informations लिखा हुआ है बीटा ऑप्शन में. That is the mistake. ठीक है, चार्ली में information है. Look at the series 7, 10, 8, 11, 9, 12. Alternative series है 7, 10 skip करो, 8, 9, 11 skip कर दिया. ठीक है, 12 skip करो, 9 के बाद क्या आना चाहिए? 10. This is known as alternative series. ठीक है, what should come next to book? Pages, learning, pictures, eraser. So आपके पास pages होना चाहिए, book है तो pages होते हैं book के. Urban surfaces have in the section of logical deduction question. Urban services have not expanded fast enough to cope with urban expansion. Low investment allocations have tended to be underspent. Both public, example water and sewage, and private, yani low income, housing infrastructure quality has declined. The impact of the environment in which children live and supporting services available to them will have when they fall ill seems clear. The decline in the average food availability and the rise in the absolute poverty point in the same uns- uh, in the same unsatisfactory direction, though adequate provisions of funds were made, but they remained unspent. So basically, यहाँ पे पूरी बात क्या हो रही है? Not expanded fast enough to cope with urban expansion. Low investment allocations have tended to be underspent. Adequate provision of fund हुआ आपके पास यहाँ पे? Definitely false. उसने ऊपर mention कर तो दिया कि low investment allocations tend to be underspent. ठीक है. Next is good voice is natural gift, but one has to keep practicing to improve and excel well in the field of music. Natural gifts need nurturing and care. Yes, they do. Even though your voice is not good, you can keep practicing. So आपके पास यहाँ पे कौन सा कंक्लूजन फॉलो होता है? द फर्स्ट वन. उसने ऐसी कोई बात नहीं की कि आपकी आवाज अच्छी है तो प्रैक्टिस करना है या नहीं अच्छी तो प्रैक्टिस करना है स्टेटमेंट, बट ये चीज बता रही है कि जो नेचुरल गिफ्ट है दे डू नीड नर्चरिंग एंड केयर. By saying the line, one has to keep practicing to improve and excel well in the field of music. Though the state cultivates only 3.2 lakh tons of mangoes, they are of premium quality, and with mangoes becoming second most consumed fruit in the world with grapes, the government has been trying exporting it through sea route, which is cheaper. An experiment which was done in this regard last year has successful. The state also cultivates large number of medium quality of mangoes. तो उसने medium quality की कोई बात की. It's probably true. उसने क्या कहा कि they are of premium quality and with mangoes becoming the second consumed fruit. Cultivates 3.2 lakh tons of mangoes. They are of premium quality. ठीक है? So based on the given paragraph, the following inference can be made. The state export the mangoes through sea routes. True. The passage mentions that government has been trying to export mangoes through the sea route, which is cheaper. Therefore, it is inferred. Question उसने क्या कहा था? The question consists of brief passage containing data regarding some social and economic problem, followed by certain inferences based on it. The student is required to analyze the content of the passage and grasp the desirable facts from it. The student has to consider each of the given inference in the context of the given passage, decide upon its degrees of truth and falsity, and then choose the best alternative provided. Okay, so the state also cultivates a large number of medium quality mangoes. That is probably true. ठीक है, the state exports only premium quality. False. देखो उसने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ठीक है, also cultivates large number of medium mangoes, so that is probably true. कि beta only. देखो the state exports only premium quality mangoes. False. The passage states that state cultivates both premium quality mangoes and large number of medium quality mangoes. Therefore, it can be inferred to state export mangoes of different qualities and not just the premium quality. ठीक है. No cities are countries, no countries are villages. So some countries are cities,
इसमें आपने क्या करना है, बेसिकली बोथ ऑफ देम डू नॉट फॉलो. उसने कहा है कि नो सिटीज आर कंट्रीज, सो सम कंट्रीज आर सिटीज, देयर इज नो रिलेशन. नो कंट्रीज आर विलेजेस, नो विलेजेस आर द सिटीज, स्टिल नो रिलेशन, यू कैन नॉट प्रूव. ठीक है. Pointing to the photograph of a person, of a boy, person A said, he is the son of the only son of my mother. How is person A related to the boy? So he is the son of the only son of my mother. यानी उसके मदर का ओनली सन है तो वो खुद ही होगा. सो ही इज बेसिकली द फादर. देखो ओनली सन है और वो कह रहे हैं मेरी ही मदर है, तो वो अपनी बात कर रहे हैं ना. ही इज गोना बी द ओनली सन ऑफ हिज मदर. ओनली सन है, अगर ओनली ना लिखा हुआ होता तो फिर कोई और भी बंदा हो सकता था. इसका मतलब द बॉय, इट्स हिज ओन बॉय, ही इज द फादर. Which of the following expression may not be true for the following expressions? Z is greater than y is equals to w, and x is less than x, w is less than x. ठीक है. So आपके पास w is greater than z is not true, क्योंकि w is less than x. ठीक है. और आपके पास x और जो z है उसका कोई रिलेशन डायरेक्ट शो ही नहीं किया हुआ. ठीक है. सो यू कैन नॉट से कि w इज लेस देन ट्रू. इट मे नॉट बी ट्रू बिकॉज आपके पास उसने इतनी ज्यादा डिटेल्स प्रोवाइड ही नहीं की हुई फॉर यू टू कंक्लूड वेदर दिस इज ट्रू और नॉट. Here we are done with the 200 questions. In case of any question or query, you guys can let me know by writing in the chat box. If there is a specific question related to a specific MCQ number, you can mention the MCQ number and I will be so glad to help you guys sort the question out. I'm going to wait for like a minute or two before ending the live stream. So in case of any question, you can let me know by writing in the chat box. We have question number 174. It's a unit of rate of, देखो, rate of flow of fluid. ठीक है. यानी एक फ्लूइड है, वो किस रेट पे फ्लो कर रहा है उसका आपने एसआई यूनिट बताना है. ठीक है. सो आपके पास जो मोस्ट कॉमन होता है दैट इज बेसिकली द वॉल्यूमेट्रिक रेट. ठीक है. यानी दैट इज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय टाइम. सो वॉल्यूम इज लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ. सो वॉल्यूम आपके पास मीटर क्यूब आ जाएगा एंड उसको आप डिवाइड करोगे टाइम से तो आपने मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय सेकंड कर देना है. सो चार्ली आपके पास इसका करेक्ट आंसर है. ठीक है. आपने वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम करना है बिकॉज जो मोस्ट कॉमन आपके पास फ्लो रेट होता है दैट इज द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट. तो वॉल्यूम ओवर टाइम करोगे तो मीटर क्यूब पर सेकंड इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा. ठीक है. इसके अलावा किसी का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो यू गाइस कैन लेट मी नो. I'm going to wait for like some time before winding up the live session here. So in case of any question or query, if you want to attempt this from the website, so आप अगर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाते हो तो there is a link given to the test. You guys can just simply click on the link and from there you guys can access this. This is the diagnostic test for 100 days to med school cohort.
For the link, you guys can just click on the description. वहाँ पे more पे click करो, and the last thing that is mentioned here, attempt test here, and the link is provided just in front of that text. So just click on the link and you will be redirected to the website, and you guys will be able to attempt the test there as well. इसके अलावा, if there are any questions, please let me know by writing them in the chat box. I think there are no more questions for today. Thank you everyone for joining the session, and see you next time, inshallah. Till then, take a good care of yourselves, and I wish you all best of luck for your exams. That's it for today's session, and Allah Hafiz.